नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कर्नाटक के विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में। हम सीधे चलते हैं कि क्या तारीखों का ऐलान किया जा रहा है कर्नाटक के विधानसभा चुनावों को लेकर। जो चेक पोस्ट और स्पेशल हाईवेज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड godowns which are under the commercial taxes department, warehouses, liquor, all have been mapped so that there is no increase or a trend of goods coming there. Similarly for freebies, eBay bills are being checked to see in any particular district if there is an increase of the material getting entry to those particular districts. SLBC, we have also requested all the banks, directed them actually, that no movement of the vans which carry cash to fill the ATMs will happen during the late hours, so that they cannot be used. At times, such vans are used for carrying cash. All that has been stopped. In terms of what happened in Karnataka after our last visit, which was, see just some pictures. Even MCC has not come into force. And this is across the parties. Freebies, cash, liquor, all that have been started already having been seized. And it is already crossed almost what was seized during the elections last time. And I want to thank the district administration and enforcement agencies on this, because having by and large tackled the issue of muscle power in the elections, this is now the focus and the time that we handle the money power also. And before MCC comes into being, because हमने उनको यही कहा कि MCC का मुहूर्त क्यों देखना है, आपके पास तो सेक्शंस हैं आईपीसी की। अगर कोई भी ब्राइब के लिए, वोटर्स को इंड्यूस करने के लिए अगर अभी से सामान लेके आ रहा है, उस पर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है बैग के ऊपर, कुकर के ऊपर रखे हुए हैं ये गोडाउन्स, इसमें देखिए आप लिखे हुए हैं, नाम भी लिखे हुए हैं, तो उसको सीज करके उस पर क्रिमिनल केस करने के लिए एमसीसी की जरूरत क्यों है? एंड थैंकफुली ऑल ऑफ देम हैव रिस्पॉन्डेड एंड वी आर श्योर दैट दिस विल पीक नाउ. एंड अगेन थ्रू योर मीडियम वी वांट टू से दैट citizens also help us by using C-Vigil more and more, and it is our guarantee that in 100 minutes we will not only reach there, we will also report back saying as to what had happened. So friends, now coming to what you have been waiting for. The schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituencies. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka
young, urban areas, rural area, PBTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the Festival of Democracy. Thank you very much. Thank you, sir. सभा चुनावों का तारीखों का ऐलान कर दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। 10 मई को वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में एक चरण में चुनाव होगा, केवल एक चरण में चुनाव किए जाएंगे और 10 मई को वहां पर वोट डाले जाने हैं और 13 मई को चुनावों के नतीजे आएंगे। 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। लास्ट डेट जो है नॉमिनेशन करने की यानी पर्चा भरने की 20 अप्रैल है, उसकी स्क्रूटनी 21 अप्रैल को होगी और आखिरी दिन होगा पर्चा वापस करने का 24 अप्रैल। लेकिन वोट जो है एक चरण में होंगे और 10 मई को वहां पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही 13 मई को चुनाव नतीजे आ जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा का जो कार्यकाल है 24 मई तक है, यानी उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। वहां पर नई सरकार का गठन हो जाएगा, नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। एक चरण में चुनाव किए जा रहे हैं पूरा कर्नाटक विधानसभा के लिए। 13 अप्रैल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और 13 मई को खत्म होगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे। 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कुछ उपचुनाव हैं, उनका भी ऐलान उन्होंने किया है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय की विधानसभा सीटों पर और जालंधर की लोकसभा सीट पर भी 10 मई को वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान अभी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया है। कुल मिलाकर 5 करोड़ 22 लाख वोटर यहाँ पर कर्नाटक में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। फ्री बीज को लेकर कोई बात नहीं हो। फ्री बीज पर किस तरह से कोशिश की जा सके, शराब और दूसरे चीज़ों को कैसे रोक लगाई जा सके, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। आयुक्त जो हैं एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और क्या एक्सरसाइज, क्या एहतियात चुनाव आयोग ने रखे हैं कि चुनाव निष्पक्ष कराए जाएं। तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है। एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है। सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस। और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है। वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है। उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और एआरओ के पास भी व्यवस्था है और पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग। उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं। मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए। क्या था बताइए? इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है, लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते। ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है। तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें। और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है। और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही। अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से तो उसका पब्लिकेशन किया गया है। उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है। अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो 2-3 बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति धीरे धीरे नीचे आ रही है।
हमने भी थोड़ा ज़्यादा बोल्ड होकर वो जगहें जहाँ पर वोटिंग कम होती है और अर्बन एरिया है उनका नाम और उनकी जगह दिखानी शुरू की है, विद ओनली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्वेस्टिंग द वोटर्स ऑफ दोज एरियाज टू प्लीज कम फॉरवर्ड। इसके हम समझते हैं परिणाम सामने आएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण अभी बताता हूं, कर्नाटका में जो RWAs हैं उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, कुछ RWAs ने, कि वो अपने यहाँ एक इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और अपने अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो उस दिन आ सकें। सो देयर इज ए फार मोर अवेयरनेस, देयर इज ए criticality attached to it now amongst the youth and also amongst the urban areas. In times to come, we are sure we'll also step up our awareness program. We'll have very targeted, focused sweep and other activities. And आप सबकी मदद से आर्टिकल्स आएंगे, आपकी मदद से ये बातें लिखी जाएंगी, तो लोगों को भी बाहर निकलने का पड़ेगा। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके लिए हमने एक काम और किया है इस बार। जो डेट ऑफ पोल है वो वेडनेसडे को रखी है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। मंडे होती तो फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी के साथ मिलती है, ट्यूसडे होता तो एक दिन की छुट्टी लेने से बाहर जा सकते हैं, 4 दिन की मिलती है। अब वेडनेसडे में तो 2 दिन लेनी पड़ेगी, जो जरा मुश्किल है। आप सुन रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। वो समझते हैं कि जो एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है उसका कारण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर जो हैं उस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें, इस डेमोक्रेटिक के माहौल में, इस महोत्सव में हिस्सा लें। इसके लिए एक और काम किया गया है। अक्सर ये शिकायत होती है कि जब वोट डालने जाते हैं तो उनका नाम, वोटर का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं होता है। तो उन्होंने कहा वैसे तो ये एक्सरसाइज होती है कि आप पहले से इसका नाम जो है अपना नाम चेक कर लें, लेकिन इस बार उन्होंने एक और सहयोग दिया, एक और काम किया है आगे बढ़कर चुनाव आयोग ने, कि आप जिस दिन की लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है यानी 20 अप्रैल, उस दिन तक भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है तो कर्नाटक के वोटर्स के लिए ये खास बात है कि यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है अब भी वो चेक कर सकते हैं। और 20 अप्रैल तक, जबकि चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है, ये बड़ा मौका चुनाव आयोग ने दिया है ताकि बाद में शिकायत नहीं हो। पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे तो हमने देखा था कि कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है जब वो वोट डालने जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए एक और मौका दिया है कि चुनाव का जब नामांकन की आखिरी तारीख होगी 20 अप्रैल कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के लिए, उस दिन तक भी कर सकते हैं। विधानसभा के 2023 के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं विधानसभा चुनाव 2018 में क्या रहा था नतीजा। भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली थी, तब 36.35% वोट मिले थे। कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और 38.14% वोट मिले थे, यानी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट मिले थे। और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी और 18.3% वोट मिले थे। आपको याद होगा कि उससे पहले 2013 में कांग्रेस को 122 सीटें मिली थी, 36% वोट थे। जेडीएस को 40 सीटें मिली थी 20% वोट के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को भी 40 सीटें मिली थी 19.9, यानी करीब 20% वोटों के साथ। कर्नाटक का अगर जातीय समीकरण देखें तो उसमें SC ST 24% है, 24.5% है, मुस्लिम 16% है, लिंगायत 14% है और वोकालिंगा 11% है। कर्नाटक के चुनावों में लिंगायत और वोकालिंगा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और इसी हिसाब से वहाँ की लीडरशिप भी तय होती है। आरक्षित सीटों की स्थिति देखेंगे तो दलित सीटों के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं, आदिवासियों के लिए 15, मनोनीत 1, सामान्य 173 और कुल 200 सीटें कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए है। तो 225 सीटों में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें 36 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। वोकालिंगा और जो है महत्वपूर्ण है, लिंगायत जो है वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लीडरशिप भी वहाँ पर तय करती हैं। 2018 के चुनाव नतीजे देखे, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई थी और उसके बाद 1 साल बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और येदियुरप्पा को पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद पिछले साल बसवराज को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इन चुनाव नतीजों का क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से चुनाव होंगे। 20 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है, 10 मई को वोट डाले जाने हैं और 13
मई को तस्वीर साफ होगी कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, कर्नाटक का किंग कौन होगा, ये 13 मई को साफ हो पाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर साहब हैं, कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश शर्मा साहब और मेरी सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त आप वहाँ मौजूद थी, क्या व्यवस्थाएं करने का भरोसा चुनाव आयोग ने दिलाया है? जी बिल्कुल सर, देखिए चुनाव आयोग ने काफ़ी सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही है कर्नाटक चुनाव को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि 80 साल तक के जो वोटर्स होंगे वो घर से वोट डाल पाएंगे और साथ ही नए वोटर्स को जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है और 9,17,000 नए वोटर्स जुड़े इस बार कर्नाटक चुनाव में, तो उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाने का मौका मिल रहा है। और साथ ही कहा है कि जिस तरीके से जी मनीषा। मनीषा से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रोवर साहब, आपको कर्नाटक की राजनीति की बेहतरीन जानकारी है, आप एक एक सीट के बारे में जानते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनावों को? क्या ये 2018 से किस तरह से अलग होंगे? के चुनाव है, इसको लेकर के ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो एक चीज स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि जो वोटर्स हैं और जो राजनीतिक दलों का जो एक तरह से कैंपेन का माहौल बन रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है जी। खास करके जैसे कि जनता के सामने जो समय मुद्दे हैं, शायद किसी भी राजनीतिक दल ने अपने जो ये हमने प्रीकर्सर देखा है कैंपेन का, उसमें कहीं ना कहीं वो एक वैक्यूम या एक डिवाइड जो है साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि इस समय कर्नाटक के लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जिस तरह से आईटी में जॉब कट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू कर्नाटक में इस समय पर है, लेकिन हमने देखा कि कोई भी राजनीतिक दल उस तरह का कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा है इनको, और हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल सिर्फ जो है इस समय कास्ट को लेकर के ही अपनी पूरी जो राजनीतिक बिसात है वो बिछा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है एक साफ तौर से दिख रही हैं कि वैक्यूम है, इशूलेस कैंपेन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा इस समय पर जो एक्चुअली राजनीतिक दलों से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो करप्शन के चार्जेस लगातार लगते आए हैं, हमने देखा है कि 6 महीने से जो कैंपेन चलता आया यहाँ पर पीसीएम हो या 40% कमीशन का कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो उसको लेकर के हालांकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, अमित शाह आए थे, उन्होंने कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दिया कि भाई इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अगली सरकार में, कि जो एक क्लीन इमेज प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं कि उनकी स्टेट यूनिट भी शायद उस तरह की गवर्नेंस दे पाए। तो ये एक दूसरा मुद्दा है। तो वहीं पर कांग्रेस के लिए भी हालांकि करप्शन के इतने चार्जेस खुल कर आए, हमने देखा कॉन्ट्रैक्टर्स ने सुसाइड तक किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया और काफी अन्य मुद्दे उस पर हुए, लेकिन DK शिव कुमार के नेतृत्व के चलते हुए, जो कि खुद ED, CBI और IT की इंक्वायरीज में फंसे हुए हैं, कांग्रेस भी इस मुद्दे को पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाई है। तो जहां ये सब चीजें जनता चाहती है कि एक क्लीन गवर्नेंस, एक एफिशिएंट गवर्नेंस हो, जो कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट दो या सिटी की डेवलपमेंट हो। हमने देखा कि फ्लडिंग हुई जब यहाँ पर पिछले साल बेंगलोर में, तो कितने लोगों के घर जमीन खराब हो गए थे और उसको लेकर के कोई एक एश्योरेंस तक नहीं दे रहा कोई राजनीतिक दल की सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो बेटर की जाएगी। तो काफी डिस्कनेक्ट मेरे को जो दिख रहा है अभी तक इसमें, कि लोग जो चाहते हैं और पार्टीज जो ऑफर कर रही हैं वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ग्रोवर साहब, आपके पास फिर लौटूंगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ग्रोवर साहब ने अभी जिक्र किया कि कर्नाटक और भ्रष्टाचार की बात, कर्नाटक के चुनावों को लेकर और कर्नाटक की राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला अक्सर आरोपों के घेरे में रहता है। कल प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब बोल रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भ्रष्टाचार के जो आरोपी राजनीतिक दल हैं वो सब एकजुट हो गए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है। आपको लगता है कि क्या कर्नाटक में ये मुमकिन हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दम भर सके?
देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में लगातार इस बात का जिक्र करते हैं और हमेशा जिक्र करते हुए इस बात को जरूर कहते हैं कि सभी दल एक साथ आ गए हैं, उसमें सब भ्रष्टाचारी हैं। ये जो शब्द का इस्तेमाल है प्रधानमंत्री अक्सर हर बड़े कार्यक्रमों में अपनी रैलियों में करते हैं। जैसा कि अभी कर्नाटक के अंदर जो स्थिति है, उस स्थिति को अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो शब्द बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं। देखिए, इसमें ये चीज बहुत स्पष्ट करने की जरूरत होगी जब बीजेपी, क्योंकि अब धीरे धीरे जो चुनावी सरगर्मियां हैं और तेज हो जाएंगी और अमित शाह खुद आप देख रहे हैं कि लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार लोगों के साथ मिल रहे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश तो प्रधानमंत्री की है कि हम साफ पाक छवि के साथ इस चुनाव में आएंगे और उनका जो उद्देश्य है बहुत ज्यादा बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि आप देखिए कि इन दिनों जो 2-3 दिनों में जो एक बड़ी पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं, खास करके अगर हम राहुल गांधी के साथ उसको जोड़ करके देखें, उनकी सदस्यता चली गई, ये भी एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में कांग्रेस के साथ वहां पे रहने वाला है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात पूरे देश में अब जब चुनाव होंगे तो ये जरूर विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार होगा, जो कि विपक्ष अक्सर इस बात को कहता है। तो वहां पर भी खास करके कर्नाटक की स्थिति को अगर हम समझें, दक्षिण कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक, ये जो दो हिस्से हैं बड़ा प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो डेवलपमेंट की पूरी तरीके से सारी चीजें दिखाई दे देती है। जब आप बेंगलोर जाते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो 80 जो पूरी विधानसभा की सीटें हैं बेंगलोर सिटी से सटी हुई, जो शहरी हिस्से की मानी जाती हैं, वहां पर सभी वो डेवलपमेंट की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो बाकी की सीटें जो ग्रामीण हिस्से है, खास करके उधर के, वहां पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी को उनको साधना होगा। एक बड़ा मुद्दा अक्सर होता है विजय जी, जो लिंगायत समाज का अगर वहां की हम बात करें और वोकालिंगा वोटर्स हैं, दोनों की संख्या वहां पर अच्छी खासी है। तकरीबन 10% वोकालिंगा है और 13% लिंगायत समुदाय के लोग हैं। तो इस बार गृह मंत्री अमित शाह उनको भी साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बड़ा वोट शेयर उनके पास भी है। दूसरी तरफ लगातार जो आंदोलन है वहां पर राज्य के अंदर, वो भी चल रहा है। तो ये सभी एक बड़ा चैलेंज होगा और भारतीय जनता पार्टी 2018 वाले फॉर्मूले पर चलेगी या फिर ये इस बार दूसरा जो फॉर्मूला है सरकार लेकर के राज्य में उतरेगी। ये धीरे धीरे जब कैंपेन शुरू हो जाएंगे तो देखने को साफ मिलेगा इस बार। विजय जी चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनावों की, जिसका अनाउंसमेंट अभी किया गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। कर्नाटक चुनाव पर ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 मई को वोटिंग और 13 मई को नतीजों की बात कही गई है। कर्नाटक में एक चरण में मतदान होंगे, यानी एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मतदान निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा लक्ष्य है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया और उसके लिए जो भी एक्सरसाइज है वो की जाएगी। 24 मई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग घर से ही वोट डाल सकेंगे, ये सुविधा भी दी गई है। कर्नाटक में 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। कर्नाटक में 9 करोड़ 17 लाख नए वोटर हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब को सुनते हैं कि वो क्या ऐलान कर रहे हैं। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. आप सुन रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब को, जो कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, जिसमें बताया गया है कि 10 मई को वहां पर वोट डाले जाएंगे, एक चरण में वोट डाले जाएंगे और 13 मई को चुनावों के नतीजे आएंगे। यानी 13 मई को शाम तक ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक में किस पार्टी को बहुमत मिला है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा साहब, कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह साहब,
वरिष्ठ पत्रकार बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय ग्रोवर साहब, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, आपके पास चलते हैं। 13 मई को चुनाव नतीजे आ जाएंगे। वैसे आपके लिए तो इस बात का कोई मायने नहीं है कि आप पार्टी जीतती है कि नहीं जीतती है, सरकार आपको बनाना आता ही है। नहीं, ये तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा, और हर एक राजनीतिक पार्टी का यही है। हम भी दावा यही करते हैं कि हमारे साथ जो है कर्नाटक में अभी जिस तरह से जनता जुड़ी हुई है उस तरह से कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ी जी, क्योंकि कांग्रेस का जो वही चेहरा सामने है आज की डेट में विजय जी, जो पिछले चुनाव में जब ये लोग उतरे थे तो वही DK शिव कुमार, वही सिद्धारमैया, वही तमाम दागी नेता। अभी तो हाल में देखिए जिस तरह से सिद्धारमैया जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि 500 रुपए जो है देकर जनता को जुटाओ ताकि ये यात्रा कहीं सफल दिखाई दे जी। तो वस्तुतः मेरा ये कहना है कि जब इस तरह की राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है तो इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं सामने रख के अगर आकलन करें और विश्लेषण करें तो उसमें निश्चित रूप से हमारा जो संपर्क है, एक सघन संपर्क या हमारे शिखर नेतृत्व का हो या वहाँ प्रदेश नेतृत्व का है। जैसे संकल्प यात्रा भी हम 95% के आसपास कवर कर चुके हैं जी, और कांग्रेस का जो है एक प्रज्ञा भवानी यात्रा करके है कोई जी, ये लोग अभी इनका कोई केंद्रीय नेतृत्व ही वहाँ कहीं नहीं पहुंचा जी। तो सवाल यह है कि जो हमारा एक संपर्क है, जो जनसंपर्क है, जो हमारी बात कहने का तौर तरीका है, उसको हमने जिस तरह से सघन तरीके से कर्नाटक में शुरू किया वो निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं अभी आज के डेट में चुनाव के ऐलान के तक हम कहीं न कहीं उसमें अपनी बढ़त समझते हैं। हमें संतुष्टि है, संतोष है कि हम मतलब अपनी जीत के प्रति जो है कहीं न कहीं अच्छे कामों का हमने शुरुआत किया है, आश्वान्वित है जी। और दूसरी जो विजय जी हम बात कहेंगे वो ये कहेंगे कि देखिए भ्रष्टाचार जो है वो भाजपा की लड़ाई नहीं है, इस देश की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है, या वो हमारे तरफ हो या इनके तरफ हो। सवाल है कि हमारे तरफ जो लोग थे हमने तो उनको निकाल बाहर किया, हमने उनको रास्ता दिखाया, हमने उनके ऊपर केस मुकदमा दर्ज किए। लेकिन आप ये देखिए कि वही DK शिव कुमार जिनके घर से 11 करोड़ रुपया मिला नगद, 600 करोड़ रुपए की अकुत संपत्ति मिली जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सिद्धारमैया जी के ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। इसी प्रकार से 28 ऐसे विधायक थे सबके लोकायुक्त के छापे में, वो सारे लोग आज इनके यहाँ इंटैक्ट है कांग्रेस में, इनका कोई भी चेहरा चाल चेहरा चरित्र बदला नहीं है। ये बिल्कुल आश्वस्त है कि हम इनके सहारे ही कांग्रेस को यहाँ जिता लेंगे या बीजेपी को हरा देंगे। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी देश में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह से अभियान है, पब्लिक कैंपेन शुरू हुआ है कि आज की डेट में इस तरह का समर्थन जो है कौन लोग कर रहे हैं, कौन सी पार्टियां कर रही हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ अपनी अपनी डफली है और अपना अपना राग है। यहाँ कोई इस समय यूनाइटेड नहीं है। ये सारे लोग जो है एक तरह से कोई कहीं से आवाज देगा, कोई कहीं से आवाज देगा। ठीक है महेश जी, रत्नाकर जी के पास जाऊं, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहता हूं। आपने बात की भारतीय जनता पार्टी के 2 मुद्दे रहे, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जोर दिया। दूसरा, युवा चेहरों पर भी आप जोर देते हैं कि पार्टी में, कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जोर दिया कि 25% तो कम से कम हम युवा रखते ही हैं। तो अभी ये जो चुनाव है वो एक साफ छवि वाले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या मुख्यमंत्री बसवराज जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? और दूसरा, आपकी जो पार्शियल याददाश्त है उसमें उनका नाम भूल गए शायद जिनके घर पर विधायक के 8 करोड़ रुपए मिले थे अभी। इसको ही कहीं ध्यान में रखा मैंने और उसी को ध्यान में रख के मैंने बात करी कि जो मदल येदियुरप्पा या पिछलप्पा जो हैं उन्हीं को कहीं हमने ध्यान में रखा। ईश्वरप्पा जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं थे, जिनके ऊपर ये कोई कॉन्ट्रैक्टर ने जो कहा, हालांकि कांग्रेस उस चीज को बहुत उठाती रही, बताती रही, लेकिन कांग्रेस ने कहीं भी किसी भी तरह से उसको लेकर, उस सबूत को लेकर FIR हुआ, उसको लेकर किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज सामने नहीं ला पाई, क्योंकि वो अनर्गल आरोप लगाते रहे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पे। तो सवाल यह है कि अभी जो कांग्रेस का जो वहाँ चाल चेहरा और चरित्र जिस तरह से आप देख रहे हैं, सर कांग्रेस की चिंता रत्नाकर जी को करने दीजिए, कांग्रेस की चिंता रत्नाकर जी को करने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप येदियुरप्पा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे जी, येदियुरप्पा साहब की लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे या बसवराज की? क्योंकि येदियुरप्पा साहब जो हैं, आपको पता ही होगा 2014 से आप उनको पहले से जानते हैं, उनकी साफ छवि के बारे में और उम्र के बारे में भी आप जानते ही हैं। नहीं, स्वाभाविक है। येदियुरप्पा जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि
कि उनको इस चुनाव में वो सहयोग का काम जरूर करेंगे। जी। जहां सहयोग की जरूरत पड़ेगी, नेतृत्व तो अभी जो बासुराव जी हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा ठीक है, जाएगा। और ठीक है। पार्टी, और जो पार्टी है यहाँ पे, आप भी विजय जी लंबे टाइम से बीजेपी कवर करते हैं, यहाँ ऐसी परिपाटी नहीं है जो कांग्रेस में है। जी, परंपरा रत्नाकर वैसी जी। नहीं है। यहाँ जो भी चीज तय होता है सामूहिक नेतृत्व तय करता है। ठीक है। यहाँ सिर्फ एक आदमी के कह देने से कि नहीं जी हम तो, राहुल जी ने आज ऐलान कर दिया कि अब सीतारमैया कल से कमान संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। रत्नाकर जी, पहली बात कि ये विधानसभा चुनाव उस वक्त हो रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये पहला अपोजिशन यूनिटी का टेस्ट हो सकता है। जो आप मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं सभी विपक्षी दल, तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को क्या आप विपक्षी एकता का पहला इम्तिहान के तौर पर देखते हैं? विजय जी, सबसे पहले मैं अपना शुरुआती स्टेटमेंट इस तरह से देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व मनाने का दिन मुकर्रर हो गया है जी। जो कि 10 मई है। और लोकतंत्र के मंदिर में मैं सारे कर्नाटक वासियों से अपील करूंगा कि वो अपना जो है वोट देकर महादान जरूर करें। जी। दूसरी बात, जो वहां पे अभी जैसा कि चुनाव आयुक्त ने कहा भी कि 20 तारीख तक, अभी 20 अप्रैल तक अभी भी टाइम है। जिसके नाम वहां पे शामिल नहीं है लिस्ट में नाम शामिल करवा वो चीजें जी करा लें। तो एक लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया में जरूर शामिल हो, सारे नागरिक से मेरा आह्वान है जी। अब आता हूं आपके प्रश्न पे। विपक्षी एकता का तो नजारा आपने देखा ही होगा कि किस तरह से 18-18 और 19-19 पार्टियां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एकजुट एक छत्र पे आ गई हैं, एक छत्र के नीचे सारी आई हैं। और किस लिए आई हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है जी। लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या कर दी है। जहां पे ईडी की जांच होनी चाहिए, जहां पे जेपीसी की मांग किया जा रहा है, वहां पे वो जेपीसी की मांग को जो 68% वोटरों के प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि आप जेपीसी की जांच कराइए, वो जांच करा नहीं रहे, बचा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी, जो अडानी जी मोदी जी के मित्र हैं, तो आप कहीं ना कहीं ईडी जो है वो वहां कर्नाटक के हमारे अध्यक्ष के ऊपर जो है आप ईडी का जांच करा रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो आप हत्या कर रहे हैं। रही बात, देखिए मैं कर्नाटक चुनाव के बारे में बता देता हूं विजय जी कि 2013 में भी हमने बहुत शानदार प्रदर्शन किया जी। 2018 में भी हमारी सरकार वहां पे बनी जी, क्योंकि ये जो है वहां पे फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए और ये बहुमत साबित नहीं कर पाए। हमने वहां पे लोकतंत्र के हिसाब से, जो जनता ने हमको जो चुना था, मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से हमने वहां पे सरकार बनाई। जिनके खिलाफ लड़े थे आप, उन्हीं के साथ सरकार बनाई। मैं वहीं था उन चुनावों में, जिनके खिलाफ लड़े थे आप, उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन मैं रत्नाकर जी एक चीज, आप ऐसे कह सकते हैं उसको, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं उसको कि हम जेडीएस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा था वहां। नहीं, खिलाफ नहीं, मैं तो वहीं चुनाव देख रहा था। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात समझना चाहता हूं कि जो महेश जी कह रहे थे, इसलिए मैंने महेश जी का समय नहीं लिया कि महेश जी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बारे में बता रहे थे। मैंने कहा रत्नाकर जी को तो आपसे ज्यादा पता है उनके बारे में, तो ये क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का? देखिए, अभी हमारे पैनलिस्ट भाजपा के कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है जी। लेकिन विजय जी, जैसा कि आपने अभी पूछा इनसे, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने कि येदियुरप्पा जी जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनको अपनी सीट क्यों गंवानी पड़ी और लिंगायत समुदाय को सिर्फ टारगेट करने के लिए उनको संसदीय समिति में महत्वपूर्ण जगह देनी पड़ी। तो ये कौन सा भ्रष्टाचार मिटाने की कवायद चल रही है इनकी? दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी पत्रकार महोदय जो है शुरुआती स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि वहां पे ठेकेदार जो है वो कहता है कि 40% कमीशन की सरकार है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लेने जाइए वहां पे 40% कमीशन की मांग की जा रही है। राज्य ठेकेदार संघ जो है प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखता है कि इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाए और इस परंपरा को, ये जो करप्शन वाली चीज है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ना कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई उसका जवाब देते हैं। तो ये किस प्रकार भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मेरा पूछना ये है। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल ठीक है, सरकार है ये पूरी तरह से। बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। रत्नाकर जी, एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कर्नाटक से आते हैं। क्या आप समझते हैं उनकी प्रतिष्ठा भी, खड़गे साहब की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव से जुड़ी हुई है? और पिछली बार आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, एक बार खड़गे साहब को मुख्यमंत्री बनाना था लेकिन पार्टी ने नहीं बनाया। अब उनको ही तय करना है, तो कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा आपका? देखिए, पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया है जी। और मुख्यमंत्री का चयन जो होता है वो विधायक दल चुनते हैं। तो निश्चित रूप से जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद विधायक दल जो है वो चुनेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा।
तो रिजल्ट आने के बाद, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं जिस प्रकार भारतीय नहीं, आप जनता इसको पार्टी खरगे साहब की जीत के साथ या लीडरशिप के साथ जोड़ते हैं क्या कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल, बनती है तो देखिए, विजय जी- क्रेडिट गोज टू खरगे साहब? हर एक पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक पार्टी का नेता, कोई भी अगर राज्य में विजय हासिल होती है उसके लिए उसको बधाई देने का और उसके कार्य को जो है सराहने का काम किया जाता है। ठीक है। चुनावों में किस पार्टी को विजय मिलेगी ये तो वो 13 मई को पता चलेगा, लेकिन अभी विजय ग्रोवर साहब जरूर हमारे साथ हैं। विजय जी, ये समझाइए कि क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? क्या फिर से वैसे ही हंग असेंबली आने वाली है? क्या येदियुरप्पा जी की जो वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी में उसका फायदा होगा, या खरगे साहब के अध्यक्ष बनने का फायदा कांग्रेस को होगा? क्या लग रहा है आपको? विजय, अगर इतिहास देखा जाए तो 1985 के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने दोबारा यहाँ पर सरकार नहीं बनाई है। दिस इज बीन द ट्रेंड कि ऑलवेज एंटी इनकम्बेंसी जो है वो फैक्टर हमेशा रहा है। और पिछली बार हालांकि बीजेपी को भी बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी ऑपरेशन लोटस के चलते हुए जिस तरह से उन्होंने जेडीएस के और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के सरकार बनाई जो कि अभी तक चल रही थी, तो ये एक फैक्टर जरूर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि जो वोटर्स की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं और जो राजनीतिक दल कैंपेन ड्राफ्ट कर रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और ये चीज साफ तौर से अभी भी दिख रही है कि जहां वोटर्स की उम्मीद इस समय पर खास करके एक लिटरेसी वाले स्टेट में एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और उन सब फैक्टर्स को लेकर के है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी राजनीतिक दल ने वो ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं दिया है। क्योंकि जितनी भी हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी है, या तो वो हिंदू मुस्लिम पे रही हैं, जिस तरह से एक साल से यहाँ पर माहौल बनाया गया है कि माइनॉरिटीज को आइसोलेट करने की कोशिश की है और थोड़ा माहौल को पोलराइज करने की कोशिश की गई है, खास करके कोस्टल कर्नाटक में वो अभी तक चालू है जिस तरह के बयान कुछ राजनीतिक दलों के आ रहे हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर कास्ट के फैक्टर्स को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक इशूलेस चुनाव में हर किसी को ये लग रहा है कि एक कास्ट कंसोलिडेशन जो है वह एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। यही कारण है कि जो येदियुरप्पा का बनवास 2-3 साल तक हमने देखा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको नजरअंदाज करते हुए आ रहे थे। अभी पिछले 3 महीने से लगातार येदियुरप्पा को जिम्मेदारी दी जा रही है, उनके बेटे को जिम्मेदारी दी जा रही है। और अमित शाह जो पिछली बार सैटरडे को जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उनके घर जाकर उनके साथ नाश्ता भी किया। तो ये सब चीजें जो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जो लिंगायत और वोकली का जो 2 प्रिडोमिनेंट कास्ट कर्नाटक की हैं जो कि पावरफुल कास्ट है, उनको रिझाने की कोशिश दोनों दल पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। डीके शिव कुमार खुद एक वोकली का है और वह भी उम्मीद कर रहे हैं कि एच.डी. कुमारस्वामी के साथ टक्कर में वह वोकली का वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन एक हंग असेंबली साफ तौर से इस समय नजर आ रही है, क्योंकि जो कुमारस्वामी का कल का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरे को दोनों तरफ से फीलर्स आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं कि और बीजेपी से भी आ रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे हाथ मिलाने को तैयार हैं। तो जो किंग मेकर का रोल जेडीएस करती आई है पिछले कई चुनावों में, इस बार भी उनको यही उम्मीद है कि अगर वे 30 से 35 सीटें लेकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल के लिए 113 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा। और उसी कोशिश में इस समय एच.डी. कुमारस्वामी भी अपना, उन्होंने कल 100 दिन का अपना रथ यात्रा पूरा किया था और अब जिस तरह से अनाउंसमेंट के बाद प्रोसेस पूरा शुरू हो जाएगा या तेजी पकड़ लेगा, साफ तौर से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी अपनी कास्ट कंसोलिडेशन और जो ओबीसी और दलित आउटरीच हमने देखा है कि हर पार्टी करने की कोशिश कर रही है, उसमें जुट जाएगी। जी, गौरव मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। गौरव, कर्नाटका में विजय ग्रोवर साहब हंग असेंबली की बात कर रहे हैं। कुमारस्वामी साहब जेडीएस के जो लीडर हैं, उनकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है रामगढ़। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, रामगढ़ उनके इलाके में आता है और रामगढ़ वो इलाका है जो हिंदुस्तान के बॉलीवुड को पसंद करने वाले लोगों के लिए शोले फिल्म से जाना जाता है और उसका सबसे मशहूर डायलॉग हुआ करता था, कितने आदमी थे। तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे के दिन क्या यही सवाल बरकरार रहेगा कि किसके पास कितने सीटें हैं और कुमारस्वामी किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो चीज़ें
जी गौरव। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है गौरव। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए अभी जो एक मुझे मैं एक बार ऑडियो कहूँगा सही कर लें। जी आपके पास फिर लौटेंगे। महेश जी, आपसे ये सवाल समझना चाहता हूं कि क्या आप कुमारस्वामी या जेडीएस से आपका बहुत नाराजगी वाला रिश्ता तो नहीं रहा है, क्या फिर से दोस्ती बढ़ाने के लिए आप सोच सकते हैं? देखिए विजय जी, जेडीएस का एक सीमित क्षेत्र है, वो वहाँ किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। सवाल है कि देखिए जैसे बीजेपी का जो अभी उसको बताने और आपको कोई चीज ये जताने की जरूरत नहीं है कि हमारा आधार क्या है। जी। हम वहाँ पे कभी भी पर्याप्त बहुमत के साथ सरकार नहीं चला पाए, ये सच है। या 2008 की बात करें या 2018 की बात करें जी। लेकिन सवाल यह है कि हम इस चीज से कहीं पीछे नहीं रहे कि भाई साउथ इंडिया का एक गेट ऑफ जो इंडिया है आपके लिए, साउथ इंडिया हाँ गेटवे जो है हमारे लिए निश्चित रूप से कर्नाटक ही खुलता है। और वहाँ हम निश्चित रूप से इस चीज को हमेशा कोशिश किए कि हमारे अच्छा लीडरशिप वहाँ कहीं ना कहीं पनपे। और वो लीडरशिप जो है या येदियुरप्पा जी के रूप में मिला या अनंत कुमार जी के रूप में मिला या जो भी कहिए। लेकिन सवाल यह है कि आज की डेट में जो आप कह रहे हैं कि हमारा संपर्क या संसर्ग या जैसे दावा कर रहे हैं एसडी स्वामी, मुझे नहीं लगता कि अभी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई आवश्यकता है या ऐसी कोई जरूरत है, क्योंकि हमारा जिस तरह का जनसंपर्क है, हमारा जो चुनाव अभियान है वो हमने पहले 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। और इसका कहीं ना कहीं अगर नजारा देखना है तो स्वाभाविक रूप से उस यात्रा में जो जिस तरह की भीड़ आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी जब जा रहे हैं, अभी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उस दिन मैं राज्यसभा में सुन रहा था कि अरे भाई हम तो राज्यसभा में हैं और देश का प्रधानमंत्री मेरे संसदीय क्षेत्र में जाकर क्या कर रहे हैं जी, और वहाँ रैली कर रहे हैं और वहाँ जो है जिस तरह से लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो वातावरण तैयार हो रहा है और ये जो कहीं हताशा और निराशा कहीं दिख रही है कांग्रेस के नेताओं में, ये निश्चित रूप से हमें इस चुनाव में जो है महेश जी मैंने ये सवाल महेश जी मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान कर रही है, जैसे आपने जिक्र किया, आप जनसंपर्क और नेता संपर्क दोनों साथ साथ ही चलाते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक फोटो देखा था, पोस्टर था जिसमें देवेगौड़ा साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो व्हील चेयर पर थे पार्लियामेंट में और प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बड़ी मिठास भरी बात की एक फोटो आई थी। तो मैंने कहा देवेगौड़ा जी दिल्ली में मिले हैं प्रधानमंत्री जी से, तो कर्नाटक में थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं ना। देखिए देश में आप तो राजनीतिक विज्ञानी रहे हैं, पत्रकारिता में आपने राजनीतिक क्षेत्र को बहुत अच्छे से आप समझते हैं, जानते हैं। इस देश में जो है ना नकारात्मक राजनीति के बहुत अभ्युदय हुए, बहुत ऐसे चेहरे और व्यक्तित्व सामने आए। जैसे आप देखिए तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे बिहार में, उसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो कुछ वहाँ भी ऐसे नेता थे जिनको जो है कोई चीज अगर मिली तो वो उनके कहीं वो मत या वोट या उनके राजनीतिक कारण से नहीं मिली, वो मैनेजमेंट से मिला। जी देवेगौड़ा जी भी जो है ना बाय डिफॉल्ट इस देश के प्रधानमंत्री बने, मजबूरी बस एक जब आदमी प्रधानमंत्री बन गया और उसके बाद उन्होंने अपना एक जो सीमित दायरा रखा, एक प्रधानमंत्री के रूप में जो एक देवेगौड़ा जी की चर्चा जो है पूरे देश में कहीं आपको उस तरह से दिखाई सुनाई नहीं पड़ी और वो भी एक अपने आप को उन्होंने सीमित कर लिया। तो प्रधानमंत्री का मुझसे मिलना एक आप कह लीजिए वो शिष्टाचार का तकाजा है, तो प्रधानमंत्री है तो उस नाते उनका मैंने कहा समझ लेता हूँ, मैं आपसे समझ सकता हूँ, मैं शिष्टाचार की बैठक समझ रहा था, लेकिन मैंने कहा आप कुछ अंदर की बात बता सकते। रत्नाकर जी 2013 में 122 सीटें मिली थी कांग्रेस को, क्या आपको लगता है कि 10 साल बाद आप अपने जो नतीजा है उसको दोहरा सकते हैं? और दूसरी बात, जो गलती हो गई पिछली बार सरकार बनने के बाद भी टूट गई, महेश जी की नजरों से बचा सकते हैं आप अपनी सरकार को अगर बनी तो? देखिए विजय जी, रही बात जो लोग टूट के चले जाते हैं, जनता जब चुनाव में वो फिर से जाते हैं तो जनता उनको माकूल जवाब देती है जी। तो निश्चित रूप से जो है 2013 की जो पुनरावृत्ति हम 2023 में निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि आज जो कर्नाटक की जनता है, जैसा कि पत्रकार महोदय भी वहां के मुद्दों के बारे में जो चर्चा कर रहे थे कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा
वहां पे मुद्दा बन के आया। भ्रष्टाचार तो है ही, क्योंकि इनके अधिकतर जो है नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वहां पे, और 8-8 करोड़ का कैश जो है विधायक के बेटे के पास बरामद हो रहा है। तो बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे। आज युवा जो है सड़कों पे घूमने को लाचार हो गया है। 2.5 लाख जो है सरकारी रिक्त पद अभी भी खाली है, लेकिन ये सरकार कहती तो है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में पूरे देश में, लेकिन दे नहीं पाती है। तो कहीं न कहीं ये जवाब देना होगा जब चुनाव में ये इनके कैंडिडेट जाएंगे, तो वहां जनता को क्या जवाब देंगे ये कि आपने क्यों नहीं रिक्त पदों को भरा, क्यों नहीं उनके बच्चों को जो है आपने सरकारी नौकरियां दी, आप इतने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पे आप क्यों विराजमान हो गए, क्यों आपने ऑपरेशन लोटस चलाया जिसके तहत जो है चुनी हुई सरकार को आपने गिराने का काम किया। तो ये सारा जवाब देना पड़ेगा इनको, और निश्चित रूप से ये जवाब देने के लायक रहेंगे नहीं, और जनता जो है इनको माकूल जवाब देगी। जी, मैं गौरव के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन महेश जी आपको जोड़ना चाहते हैं छोटी टिप्पणी? जी, मैं ये कहना चाह रहा था विजय जी कि देखिए, कर्नाटक से ज्यादा अगर कहीं दुरा स्थिति थी और चुनौती थी तो वो नॉर्थ ईस्ट में थी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ कभी किसी चीज तरह से अपने आप को राजनीतिक रूप से जो है ना सहज नहीं पाती थी। लेकिन आज देखिए कि आज राजनीति का जो इस देश में दशा और दिशा बदला है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर हम कर्नाटक की बात करें तो स्वाभाविक रूप से ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी जब वहां गए और उनके भाषणों को हम ध्यान से सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहीं जाति बिरादरी और उसकी बात नहीं करी। आज कहीं ना कहीं देश का ही हिस्सा कर्नाटक है, वहाँ विकास की बात जो है जरूर कहीं जनता को लुभाएगी, बताएगी, और उनके दिमाग में ये चीज कहीं सामने रख के ही वो लोग अपने मतदान करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कोई भी पार्टी उसको किस प्रकार से रख पा रही है, किस तरह से उस चीज को जनता को समझा पा रही है। विकास जो है वो कर्नाटक से अब वहां पे जो हम बात कर रहे थे, जैसे हम लोग अभी त्रिपुरा में ही जाते थे या नागालैंड में जाते थे तो कहते कि भाई आदिवासी जो है ट्राइबल एरिया है, वहाँ तो 20 सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ तो सारी चीजें वो तोमर या वो जो पार्टियां हैं उनको मिलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है यहाँ भी जो अब एनालिसिस है वो सारा एनालिसिस इस बार विजय जी कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा आपको। ये कोई आधार नहीं बनेगा जो हम आज की डेट में पारंपरिक रूप से जो हम सोचते रहे कि भाई कर्नाटक में जो है ये मठ, ये लिंगायत, ये बोकालिगा, ये शेड्यूल कास्ट, ये 4% मुसलमान, ये सब बैरियर इस बार टूटेंगे इस चुनाव के। जी, तो ये लिंगायत की कोई चिंता नहीं है, शायद इसलिए आपने नहीं लिया इनको, येदियुरप्पा साहब को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आप समझते हैं लिंगायत? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी जब जुड़े भारतीय जनता पार्टी, ये आपके यहाँ पर ये अच्छा लगता है महेश जी कि नहीं, फाउंडर मेंबर तो रहे थे, कब रहे उसके बाद आए, कि आप सेमेस्टर वाइज एनालिसिस करते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स का। ठीक है, तो 2014 में बाहर कर दें, फिर 2019 में बुला लें, फिर 2021 में वापस भेज दें, जो पास हो जाए सेमेस्टर में वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा ही है ना? देखिए राजनीति, देखिए मैं आपको ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई हम आप जो भी बात कहते हैं उसमें आप येदियुरप्पा जी गए आए, लेकिन ये चीज तो है ना कि कम से कम हम उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा बाहर गए, हमने बाहर का रास्ता दिखाया। जब कहीं उनके ऊपर कोर्ट कचहरी का जो है कहीं वो उस चीज में अभी भी उनका जो जिस तरह का उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे बहाल किया हुआ है, क्लीन चिट नहीं दिया, क्लीन चिट नहीं दिया। गौरव, एक लास्ट कमेंट आपका चाहता हूं, फाइनल कमेंट, ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या हंग असेंबली देख रहे हैं कर्नाटक में? बहुत छोटा जवाब आपसे। या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार बनती हुई चर्चा कर रहे थे कि इस बार का चुनाव जो कर्नाटक में है, भारतीय जनता पार्टी ये कह के लड़ रही है कि पूरा जो विपक्ष है, यानी कि पूरा जो भ्रष्टाचारी है, एक साथ आ गए हैं। एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी सभाओं में की जा रही है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी का, अगर हम ये कहें कि जो ये वाली छवि बना देना सभी पार्टियों की कि वो भ्रष्टाचारी है, ये निश्चित तौर पे ये बीजेपी इस तरीके से चुनाव में जाना चाहती है। अमित शाह भी वहां पर अभी होकर करप्शन बड़ा इशू बना सकते हैं, चाहते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा वहां पे रहने वाला है और हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। वो इस तरीके का मैसेज भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां देने की कोशिश कर रही है। विजय, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपका शुक्रिया, महेश वर्मा जी आपका शुक्रिया, रत्नाकर जी और विजय ग्रोवर साहब और मनीषा का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला।